Hi students, today my topic is for 11th class and the name of topic is equations of uniformly accelerated linear motion. So उससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे आई थिंक मैंने वो सारे पढ़ाए हैं आपको. उसमें मैंने पढ़ाया था आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ which was used to calculate the velocity slope of displacement time graph used as velocity. उसके बाद मैंने पढ़ाया था velocity time graph and that velocity time graph has two advantages. We can calculate acceleration, we can also calculate displacement. How we can calculate acceleration? Slope of velocity time graph simply gives us acceleration, and second the area under velocity time graph gives us displacement. वो मैंने already आपको पढ़ाए हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स इम्पोर्टेंट वन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है. इट्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है बेटा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है. अगर इक्वेशंस उसके लिए निकालने हैं आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. लेट्स डिफाइन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन आसान है, मुश्किल नहीं है. कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन, लेट दैट बी OX लाइन, OX एक्सिस, X एक्सिस जिसको हम कहते हैं. एक ऑब्जेक्ट यहां से उसने स्टार्ट किया है. इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स अलोंग इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड यू नो उस जब ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो बिल्कुल उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. ऑब्वियसली कॉमन सेंस है. एंड after starting its motion, it starts moving with a uniform acceleration. It starts moving with a uniform acceleration. What do you mean by uniform acceleration? Equal increase in velocity in equal intervals of time. Equal change in velocity in equal intervals of time. यहाँ हम कह सकते हैं equal increase in velocity या equal decrease in. यहाँ पर increase हो रही है velocity. So let यहाँ पर increase हो रही है velocity. It's equal increase in velocity in equal intervals of time. So object is moving along a straight line with uniform acceleration. With uniform acceleration. So this is the case when an object moves along a straight line with a uniform acceleration. इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. आसान सा है. अब जो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हो आप. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है द फ्री फॉल ऑफ ए बिग बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अगर एक बॉडी को हम ऊपर से नीचे लगाते हैं, सपोज स्टूल हम ऊपर से नीचे लगाते हैं, सो जो उसकी एक्सेलरेशन है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. जो उसकी मोशन है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन बिकॉज इट मूव्स अप टू डाउन, इट मूव्स वर्टिकली विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहती है. सो वी कैन से द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, free fall of a body is the best example of uniformly accelerated linear motion. The free fall of a body is the best example of uniformly accelerated linear motion. और जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है दैट इज G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ऊपर से नीचे तक. उसका मैग्नीट्यूड मीन जो एक्सेलरेशन है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है. Magnitude remains constant. Its direction of motion remains same. So we can say it is the best example of uniformly accelerated linear motion. ठीक है? So let's move forward. Now we can derive. Now how we can derive equations of uniformly accelerated linear motion? There are two methods. First is graphical method and second is calculus method. First of all, we will derive the equations of uniformly accelerated linear motion by graphical method, जो important है, जो एग्जाम में भी आता है. So let's move to that. So before deriving the equations of uniformly accelerated linear motion, students, we will show the motion in which the object has a uniform acceleration along a straight line. Means the object have a uniformly accelerated linear motion. First of all, हम ये समझना है हमें. So let's take an
x-axis, let that be the origin. Let at time t is equal to 0. Let at time t is equal to 0. जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग टाइम जो था ऑलमोस्ट 0 ही होता है. सो ऑब्जेक्ट वाज एट पॉइंट ए. ऑब्जेक्ट कहां पर था, अच्छे से समझना है. ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था और वहां पर जो इनिशियल पोजीशन थी दैट वाज x0. इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी x0. लेट दैट बी x0. और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी लेट दैट बी u. लेट दैट बी u फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है. और आफ्टर टाइम t द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट b एट टाइम t. और उस वक्त जो पोजीशन थी दैट लेट दैट बी x. लेट दैट बी x. फाइनल पोजीशन x थी और फाइनल वेलोसिटी v थी. फाइनल वेलोसिटी v थी. मगर जब ऑब्जेक्ट यहां से a से लेकर b तक चला, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेट इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो इट इज परफेक्टली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिनियर मोशन. ठीक है. हमें यही केस लेना है क्योंकि अगर इसके लिए इक्वेशन निकालनी है वी कैन नॉट take the case of non-uniform motion. We have to take the example of uniformly accelerated linear motion. Let's move forward. यहां पर आप देख सकते हो at point A time was 0, position was x0, initial velocity was u. At point B time was 0, time was t, final position was x और velocity was v. So clearly यहां पर displacement क्या है, यहां पर टाइम इंटरवल क्या है, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है. आप एक सारा कुछ यहां निकाल सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. टाइम इंटरवल क्या था पहले. टाइम इंटरवल, व्हाट इज टाइम इंटरवल हियर इन दैट मोशन. इट इज फाइनल माइनस इनिशियल t minus 0. सो टाइम इंटरवल इज सिंपली t. इट इज सिंपली t. टाइम इंटरवल फ्रॉम a टू b कितना है, t है. इस टी में क्या हुआ, इस टी में बहुत कुछ हुआ. डिस्प्लेसमेंट भी हुई, चेंज इन वेलोसिटी भी हो गई. सो लेट्स मूव टू दैट. चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई. चेंज इन वेलोसिटी इट इज सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल. आई ऑलवेज, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो इट इज v माइनस u. इट इज v माइनस u. और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस मोशन में. आप डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैंने पोजीशन भी दे दिए. इट्स इनिशियल पोजीशन, इट इज फाइनल पोजीशन. सो इट इज x माइनस x0 फाइनल माइनस इनिशियल. एंड दैट डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं s से. So these are the some terms which have to be calculated in that motion जो मैंने आपको दे दिए हैं यहां पर. ठीक है. So अब इसी पे हम ग्राफ बनाएंगे. कौन सा ग्राफ बनाएंगे, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इस मोशन के लिए. एंड रिमेंबर इट्स एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिनियर मोशन. मींस द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. सो वी कैन यूज अ VT ग्राफ फॉर दैट in order to derive the equations of uniformly accelerated linear motion. We can use a VT graph. And VT graph में आपको पता है कि हम टाइम लेते हैं x एक्सिस से. You all know this is the origin of the VT graph. और यहां पर हम लेते हैं velocity, y एक्सिस से हम velocity लेते हैं. ठीक है. So let's move forward here. Object, पहले मुझे पता ऑब्जेक्ट ने मूव किया from A to B. So graph will be, it's moving with, it's a uniform acceleration. So graph will be a straight line like that from A to B. ये पॉइंट्स में दो ग्राफ पे लेता हूं. एक आसान सा तरीका है ग्राफ बनाने का. ये पॉइंट A, here is point A, here is point B. So I will take that graph from A to B. So it is the graph for uniform acceleration. अब मैंने ये origin से क्यों नहीं लिया है, यहां से क्यों नहीं लिया है, आप देख सकते हो. at point A the initial velocity is u. So this is our initial velocity u. This is our initial velocity u. It may 0, it may not be 0. अगर initial velocity 0 होगी तो obviously ग्राफ यहां से आएगा. अगर कुछ शक होगा कि 0 नहीं है तो फ्रॉम A से हम ले सकते हैं ऊपर वाले तक. ठीक है. बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स आवर वेलोसिटी, दिस रिप्रेजेंट्स आवर टाइम. सो दिस इज अ स्ट्रेट ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड आई ऑलरेडी टेल यू दैट VT ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट. फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी मैंने दिखाया है, नेगेटिव भी दिखाया है. ठीक है. सो लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट ग्राफ. ठीक है. ये द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम U. सो मैंने यहां पर पॉइंट A लिया, पॉइंट A से B तक एक स्ट्रेट ग्राफ आया बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म
acceleration, object is moving with a uniform equal increase in velocity हो रही है in equal intervals of time. With time velocity linearly increase हो रही है. So AB is the graph for uniformly accelerated linear motion के लिए ये ग्राफ आएगा. अब यहाँ पर मुझे कुछ टर्म्स आपको डिजिग्नेट करनी है, वो आप देख सकते हो. यहाँ पर जो पॉइंट B है, फ्रॉम पॉइंट B I will draw a perpendicular BC. I will draw a perpendicular BC on time axis. From point B, I draw a perpendicular on x-axis, that's OC. This OC represents our time interval because it's time axis. यहाँ से मैंने टाइम लिया है और यही B से मैं एक और perpendicular डालूंगा इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, and let that be BD perpendicular, and this represents me a final velocity V. This represents me a final velocity V. From that point A, I draw another perpendicular on that BC. Let that be BE, AE. ठीक है? Let that be AE. Now we can give the names to these sections here. Here BC किसके बराबर है? V के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी. EC किसके बराबर है? ये U के ही बराबर है, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल हियर. देखो रेक्टेंगल AECO. हियर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. सो AO किसके बराबर है? EC के बराबर. ये BU और ये BU. और OC किसके बराबर है? AE के बराबर. अगर OCT है तो AE किसके बराबर होगा? T के ही बराबर होगा. अब यहां पर एक टर्म रहती है, एक सेक्शन रहता है BE. सो BE किसके बराबर है? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल V. हियर BE किसके बराबर है? इट इज BC माइनस EC माइनस, ऐसे चीज देख लो, BC किसके बराबर है? BE किसके बराबर? BC माइनस EC. BC किसके बराबर है? V माइनस U. सो BE is change in velocity V minus U. V minus U. So these are the various terms, various sections of that figure in the graph, in the VT graph. ठीक है? सो यहाँ पर आपको ये सारा समझ आएगा कि ये कैसे ग्राफ बनता है इस मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड लीनियर मोशन के लिए. सो ये ग्राफ यूज करके हम निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड लीनियर मोशन. ठीक है? सो मेरे ख्याल से जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा. यहाँ तक तो मैंने आज पढ़ाया आपको, लेकिन जो दूसरा वीडियो होगा वो यही से कंटिन्यू होगा. सो सॉरी स्टूडेंट्स, फिर ये अपलोड ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ 2G. सो आप यहाँ तक आज मैंने पढ़ाया आपको, उसके बाद जो टॉपिक है वो यही से मैं स्टार्ट करूंगा. फिगर बनी हुई होगी और मैं यही से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा और इक्वेशंस आपके लिए निकालूंगा. इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन आराम से निकालूंगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह.